मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKV और मैं हूँ इस वक्त एज यूजुअल एडवोकेट प्रदीप नमबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहाँ हैं? हमेशा नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ, ऑलवेज विद यू। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Pradeep ji, so India is a beacon of hope. That's what JP Morgan says. Yes, yes. That's in fact, what all the and, world credit agencies. And by the way, a couple of international agencies, international rating agencies and audits have actually said that this time, because earlier they had pegged India's growth at about 6.2%. Now they say they're very sure it's going to be 6.5%. Yes, sir. Everybody 6.5, 6.7, 6.5. Which is absolutely amazing. Yes, yes. Considering the fact that, and the figures which have come in for the festival season, by the way, are mind-boggling. The retail prices, the retail sales are huge. They're up by about 50,000 crores. You know, just during the Diwali season. Yes, yes, yes. Which is fantastic. Employment figures are up. Manufacturing figures are up, retail sales are up, so things are looking up. This is not as bad as it sounded earlier, which is absolutely lovely. But the Congress is still not satisfied. Yes. The Congress says why the industrialists moving out of the country, and especially they said Mitrakal, you know, the people who are Param Mitra, they talk Vinod Adani, they talk about Pankaj Oswal, and they name Surendra Hiranandani. They say ये आपके परम मित्र है, ये देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? Why are they taking golden passports in European Union? क्या जरूरत है? I don't think Vasudhaiva Kutumbakam can be an answer. It isn't. It isn't. But the only thing that has to be determined is that are they going to set up shop in Europe? Are they winding up their business here and moving out? Or is this going to be a strategy from the family that you have one of the guys over there and one chap looking after the business here? We don't know, because even earlier these things used to happen. One part of the family used to be in the United States, or they used to be in the UK or in Germany. Oh, Mauritius. Yes. Mauritius, you don't need to be in Mauritius. I mean, Mauritius, it's an offshore. We had our friends from Satyam, Srini Raju, Ramlinga Raju. Yes. One here, one there. And nothing has happened to any of them. They're all fine now. They're all fine now. They're all fine. They're all running their channels. Only SEBI investigated them. Yes. And ultimately, they gave them a clean chit. Ultimately, they gave a clean chit. Isn't that wonderful? Good to have good friends. First, the show cause notice of SEBI is very scary. They say you haven't resigned. You say you left 9 years ago, but you're still in the board of directors. Yes. Even after 9 years. And then they levied a huge fine and they said investigation has to be done. And then investigation ke baad kuch nahi nikla. That's right. And I wonder what's going to happen, because we haven't really talked about our friend Sarashri. He passed away recently. Yes. And one of the reasons why I didn't talk about him was I was very, very sad myself. So I was actually grieving. I didn't want to talk about it. I wonder what's going to happen to Sahara. I mean, what happened to the case? There are 23,000 crores lying with SEBI. Is that going to be distributed? Mr. Amit Shah had promised, because after all, he's not just Home Minister, he's also the Minister for Cooperative Affairs. He had promised everybody that, you know, they would get their money. Now, the problem is that people say that the website of the government, you know, all the applications are bouncing back and stuff like that. So the government really has to, you know, work out what. So what's going to happen to Sahara? They still have property, they still have cash, they still have a lot of other stuff. And the two sons, Mr. Simanta Roy and Mr. Sushant Roy, are abroad. They've got citizenship of these countries. And Mrs. Sapna Roy, who's Mr. Subrat Roy, that is Honorable Sarashri's wife, she's also taken up citizenship of Macedonia, is it? Yes, I think Macedonia. All of them. Many have got foreign passports. Yes, and Macedonia is a country with which we don't have an extradition treaty. It helps, I suppose. But that's something that needs to be considered, because if you remember, Sahara used to be the biggest employer in the country. They used to claim that they had 10.5 lakh employees. But you need to appreciate that person. He had every chances of going out. He didn't. He didn't. He refused to. He refused to go out. He was here till the end. I mean, he could have been sitting in Skopje, the birthplace of Mother Teresa, Saint Teresa now. Sir, yes, sir. And you know, he could have been sitting pretty. He could have said, no, I'm not coming back. That's it. So he had bought the Grosvenor house.
You could have very well settled there immediately. Yes. You got all our fugitives, economic fugitives out there in London. Yes. Vijay Mallya, Nirav Modi. Nirav Modi, other Modi, Lalit Modi. Lalit Modi. So all the fugitives are there in London, and this person had assets in London and preferred not to be there. He came back to India and he was ready to face the trial. I think you must praise him for that. Yes, he needs to be praised for that. That shows guts. That shows a lot of strength of character, and that's amazing. But I wonder what's going to happen to the rest of Sahara, because the engine that was driving Sahara was Sara Shri himself, that is Mr. Subrata Roy. Without him, I don't think they have the leadership. Quality left to lead this organization into where it's supposed to go. But I'm not sure. I may be wrong. I hope I'm wrong. I don't think anybody in the other family other than Sara Shri yes, had the courage, the good intention. You know, his intention was actually always clear and neat. Always very good. He wanted the best facilities for his employees and all those kind of things. He had a very good heart. Large heart, generous man. And he is the only person with a good heart out there. Yes. So, only a person with a good heart can actually run a company. He was the only man who didn't have a mean streak in him, by the way. Exactly. He was the only man who was generous, very just, और एक शख्स जो जिसने आज तक कभी किसी के साथ अनफेयरनेस नहीं करी, अगर उसको उनको ये मालूम पड़ा कि भाई किसी के साथ अनफेयरनेस हो रही है, I can vouch for it personally. So can you, Pradeep? Yes. He said, "Hey, listen, we made a mistake. You come back." And that's it. That was the kind of man he was. I don't think these guys who are there right now have that. None of them. None of them. So only a person who has created anything like this. I think it's one of the biggest giants. Yes. In the informal sector. That's right. You know, in the formal and regulatory sectors, you have the Ambanis and Tatas and everybody. But in the informal sector, I think he was a giant. I personally, you know what I think? I may be completely wrong. People might actually laugh at me for this. I think Mr. Modi's government and everybody else, and their entire project of direct benefit transfer, the DBT, might actually have been inspired by Sahara, very frankly speaking. Because if you remember, Sahara reached where no banks could reach earlier. So they were fulfilling a huge need. And I wonder who's going to step into the vacuum. Actually speaking, Sara should have been allowed to continue with checks and balances, and things. With a good government and with a kind of phasing out programs, they could have, because when he started business, the SEBI laws were not intact. 1992 was when SEBI Act came into picture. So before that, he started his business before that, 30 years. So तब से शुरुआत है, तो आप इतने, even if you count the cut-off date where SEBI's Act was introduced, then also quite unfair for people to shut down their business. And suddenly out of the blue, the Supreme Court says, "Hey, we want the money. Have you brought the money?" He says, "What? You want me to give you 25,000 crores? Hey, even the State Bank of India does not have that kind of liquidity." Exactly. That's what he tried arguing. But nobody is willing to listen. The Supreme Court said, "We don't want to hear your romance with your investors. Have you got the money? If you don't have it, please go to the jail." Which is sad. Anyway, we'll have a proper discussion on Sahara one of these days. I hope I'm able to do it without getting emotional. Do remember, I spent 9 years over there, and I have a great emotional connect to Sahara. So does Pradeep ji. We were both there, and we saw the organization grow, and we've seen Mr. Subrata Roy. There is Sahara Shri, Honorable Sahara Shri, my friend, my elder brother, the man whom I really and truly admire. I tell you what, one of these days we'll have a proper discussion on what Sahara really stands for. Right, at the moment with us from the BJP, we have Mr. Chandan Goswami. Goswami Sahab, Namaskar. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram, sir. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. क्या बात है सर? सर, so जितनी भी रेटिंग एजेंसी हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी जितनी भी हैं, वो कहती हैं कि भाई भारत का जो उनकी पहले कैलकुलेशन थी, जीडीपी होगा कोई 6.2% होगा, 6% होगा, 5.9% होगा, अब हर कोई बोलता है 6.5% होगा साहब, which is fantastic. That is number one. Number two, रिटेल सेल्स जो इस बार हुई हैं फेस्टिवल्स में वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा हुई हैं. एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इज लुकिंग अप, एम्प्लॉयमेंट इज अप, मैन्युफैक्चरिंग इज अप, इंडस्ट्रियल इंडेक्स इज अप. मतलब दिस इज फैंटास्टिक न्यूज, really and truly wonderful news. Finally,
India is growing really and truly wonderful. चंदन गोस्वामी साहब, इसके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे सर आप, भारत की प्रगति के ऊपर? ये मोदी है तो मुमकिन है। क्या बात है सर, वंडरफुल। ऐसा है, सभी कांग्रेस और विपक्षी जो दल है जी, वो इस सरकार को और भारत को बदनाम करने की कोई कसर छोड़ते नहीं है जी, और ऐसी अनर्गल बातों से भी करते हैं जिससे उनका खुद का मॉरल और जनता में उनकी छवि धूमिल होती है। लेकिन जब सरकारी स्तर पर बैठा जाता है, सरकार की जब प्लानिंग बनती है, जब सरकार एकदम सीरियसली होती है, तो वह जो नीचे के तबके से लेकर ऊपर तबके तक किस प्रकार की योजनाओं लाए और किस प्रकार से उसको लाभ मिले, तो यह उसी का परिणाम है कि भारत में एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी और सेल सब कुछ बहुत अच्छी तरह हो रहा है। यह एक विश्व गुरु बनने की तरफ एक संकेत है, ये हमारे बहुत अच्छे संकेत है, क्योंकि अभी तो हमें इसके बाद हमें रामलला का आशीर्वाद मिलने वाला है। समय ज्यादा है नहीं, जो भी रामलला आ रहे हैं जी, तो ये सब सरकार की एक उपलब्धियां हैं और अच्छी उपलब्धियां हैं। इसको हमें और जनता को और पूरे विश्व को इसके ऊपर में अपना अभिमान है। बिल्कुल चंदन जी, बात यह है कि आज भी अमित शाह अपने कैंपेन्स में लगातार यही है जो आपने बोला, रामलला आ रहा है, भगवान राम आ रहा है, जो आपका कैंपेन चल रहा है। आज भी हर कैंपेन जहां भी हुआ, कल परसों 2-3 दिन में लगातार राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, आपने यही हाईलाइट किया कि रामलला आ रहा है। और आगे जाके मोदी साहब ने कहा कि देखो काशी विश्वनाथ कैसे भव्य बनाया, उज्जैन महाकाल को हमने भव्य बनाया, केदारनाथ को भव्य बनाया, अब अयोध्या को भव्य बना रहे हैं। और 2 दिन पहले मथुरा में गए थे, बोले कृष्ण जन्मभूमि को उतना ही भव्य बनाएंगे। दैट वाज नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि थे 2 दिन पहले, और इन्होंने कहा कि जैसे हमने पूरे मंदिर को सब जितने गिनाए सबको ठीक कर दिया था, कृष्ण जन्मभूमि भी ठीक होगा। और अमित शाह हर कैंपेन में, हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्टेज पर यही सबको 22/1/2024 का याद दिलाते हैं। और उन्होंने ये भी दिलाते थे कि 5 अगस्त 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही इसका भूमि पूजन किया था। आज अपने भूमि पूजन का, मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठान 12:22। नाउ दिस इज क्लियर, हिंदुत्व कैंपेन 2024 इलेक्शन मई में है। गोस्वामी जी, चंदन जी, देखिए ये जो मंदिर है और कॉरिडोर बन रहे हैं, इससे सबसे पहली बात तो एक आस्था का एक बहुत अच्छी तरह मजबूती होती है। लोग आस्था के साथ अपना दर्शन करने जाते हैं अपने प्रभु की, साथ ही साथ इसमें लोगों को सुविधाएं भी होती है और विकास बहुत बड़े पैमाने पर होता है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोग अलग अलग तरीके से उसमें अपना रोजगार निकालते हैं। अब बताइए, अयोध्या में किसी ने सोचा था कि अंतरराष्ट्रीय विमानतल बनेगा? किसी ने यह सोचा था कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी होटल्स भी जो चैन है वो वहां आएंगी? अनेक मंदिरों ने, अनेक संस्थाओं ने वहां पर में अपने अपने आश्रम और अपने सब खोलने के लिए वहां पर में सरकार से परमिशन मांगी है। उज्जैन में देखिए आप, उज्जैन में एक विशाल का, उज्जैन में वह लाइन कितनी रहती थी, अब लोग और बढ़ने लगे थे। उज्जैन में एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बन गया जो एक दार्शनिक स्थल है। बनारस में भी इसी प्रकार का कॉरिडोर बना। अब हम ये चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कृष्ण जन्मभूमि में, तो वह जरूर बनेगा। वहां के जो लोगों को, वहां के जो स्थानीय लोगों को सरकारी दाम पर, सरकार की सरकार का जो जमीनी रेट है उससे ज्यादा स्तर पर उसको पैसे दिए जाते हैं। वहां पर में सबकी आस्था है बहुत अच्छा बने, और जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको कहीं और कॉलोनियां बना करके दी जाएंगी, उनको रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा, उनको कहीं और दुकानें दी जाएंगी। ये सरकार का एक बहुत बड़ा ध्येय है। तो हम भी चाहते हैं हमारे रामलला के साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि भी सभी लोग उसका विकास करें और कॉरिडोर बने और सभी उसका दर्शन करें। हमारे बाकी बिहारी जी हो गए, राधा रमन जी हो गए। चंदन गोस्वामी साहब, एक अनुमान के मुताबिक, ये स्टडी हम लोगों ने बहुत पहले करी थी एक्चुअली, मैं आपको बता दूंगा, बहुत पहले की बात है, ये फिगर्स भी बड़े पुराने हैं वेरी फ्रेंकली। वो उस वक्त हमारे
अशोक डालमिया जी हुआ करते थे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे जी। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला काफ़ी देर तक। और उसके बाद जो जैन स्टूडियो था डॉक्टर जेके जैन का, उसमें भी जो सारी फिल्में बनी हैं अभी तक विश्व हिंदू परिषद की, वो मैंने बनाई हैं बाय द वे। और जो प्राण जाऊ पर वचन न जाऊ, जो वीएचपी की जो फिल्म है 1989 में, जो 1991 में जो फायरिंग हुई थी, 1990 में जो फायरिंग हुई थी वहाँ पे, उसमें अगर आप आवाज़ सुनेंगे तो गलती से वो आवाज़ राजीव बजाज की है, यानी मेरी। वाह, वो पिक्चर बहुत अच्छी बात है जी। वो फिल्म भी मैंने बनाई है, डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है। उस वक्त ये एक सर, उस वक्त ये एक अनुमान था कि अगर आज की तारीख में राम जन्मभूमि मंदिर और साथ में अयोध्या का पूरा विकास हो जाए तो सिर्फ जो मतलब जितने भी श्रद्धालु हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से उत्तर प्रदेश की जो इकॉनमी है वो इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि उत्तर प्रदेश विल बिकम द नंबर 1 स्टेट इन द एंटायर कंट्री। आज जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक, मैं बहुत आपको कंजर्वेटिव फिगर्स दे रहा हूँ साहब, बहुत कम वाले फिगर्स दे रहा हूँ आपको। जैसे उज्जैन कॉरिडोर बन गया, खैर उज्जैन तो खैर मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी कनेक्टेड है। लेट्स बी वेरी क्लियर, इट इज ऑल कनेक्टेड। दूसरा क्या है, अभी वो बुंदेलखंड की एक नई हाईवे बन रही है, इट विल बी द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द कंट्री। नंबर 2, कृष्ण जन्मस्थान, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, ये इसकी वजह से तकरीबन सिर्फ इसी की वजह से भारत की इकोनॉमी में 5 साल के अंदर अंदर मिनिमम $500 बिलियन, $500 बिलियन पर एनम का इजाफा होगा। ये बहुत कम फिगर है सर, ये बहुत कम फिगर है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ही तकरीबन 700 ऐसी जगह हैं जो तीर्थ स्थान हैं, जो धर्मस्थल हैं। उन्हीं को अगर अच्छी तरीके से डेवलप कर लिया जाए, भले वो हिंदू तीर्थ स्थान हो, मुस्लिम तीर्थ स्थान हो, और वो उसमें मुस्लिम तीर्थ स्थान है उनकी भी पूरी लिस्ट है। मैं आपको बता दूं, मतलब भारत को कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब जो धर्मस्थल है, भारत की जो धार्मिक संस्कृति है, वही इतनी बड़ी है कि वहीं से आपको इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मुझे लगता है लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। चंदन गोस्वामी साहब जी, बिल्कुल सही बात है। लोग समझ रहे हैं, लोग जाते हैं वहां पर, में देखते हैं और वहां से आने के बाद हमें बताते हैं कि क्या बनाया है मोदी जी ने। वो केवल मोदी जी का नाम लेते हैं और कॉरिडोर का नाम लेते हैं। उज्जैन बना, बनारस बना, काशी विश्वनाथ बना, वो कहते हैं कि क्या बनाया है, हमें वहां पर में हर चीज की सहूलियत मिली। और मुझे एक बहुत अच्छी खुशी बात है, वहां लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, स्वयं रोजगार कर रहे हैं। वहां पर में बहुत अच्छे से अपना बनारस और उज्जैन के अंदर में हर व्यक्ति साथ दिए सरकार को, खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा वहां पर में। और यही हमें जो विश्व की सबसे बड़ी अपना अर्थव्यवस्था बनानी है, तीसरे या चौथे नंबर की, यह हमें उसमें काम आएगी। यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप दिवाली में देखिए, आप मार्केट में जा सकते नहीं थे, आप कार को लेके जाने की दूर बात है, स्कूटर से आप जा नहीं पाते थे। इतनी महिलाएं, माता बहने, भाई लोग इतने भिड़े हुए थे वहां पर में, हर दुकानों पे भीड़ थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदू त्योहार, हिंदू लोग इस प्रकार से करते हैं, वो देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। यही बात नहीं है चंदन गोस्वामी साहब, चंदन गोस्वामी साहब, उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं उन्होंने आकर के बोला है कि हम सबसे ज्यादा खुश हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, ऐसा बोला उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सर बहुत खुशी की बात है सर। सारी डेकोरेशन जो है, जो चुनरी है, जो पूरी ड्रेसेस हैं, वो तो सारी की सारी अंसारियों ने बनाई है, मुसलमान जुलाहों ने बनाई है। क्या बात कर रहे हो सर? तो ये तो भारत की संस्कृति है, ये कोई रिलीजियस चीज थोड़ी है। सर बताएं। नहीं, लेकिन क्या होता है, ये आपने जो बताई ये बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम लोग, हम तो देखिए हर धर्म का अपना मानते हैं, हर धर्म के अपनी एक पूजा पाठ, एक पद्धति है, उसको करना चाहिए। लेकिन एक क्या है, जो धार्मिक संस्था जो अन्य धर्मों की है, कुछ रूढ़िवादी, कुछ अपनी राजनीति चलाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे फतवे जारी किए अंदर कि भाई हिंदुओं से सामान न लेवे, उनके जैसे रमजान के समय पे। ये बहुत एक गलत बात है। हम तो चाहते हैं हमारे
दिवाली होवे, अन्य त्योहार हुए, होली होवे, सब में सब साथ अरे आ रहे हैं, कौन हम सुन रहा है सबके ऐसे साथ रह फतवे? रहे हैं। क्या बात कर, कोई सुनता है क्या ऐसे फतवों को? न, जितने बजाज साहब और हमने बात किया, जितने भी मुसलमान से मुसलमान, हर मुसलमान जिसने हमने बात किया, सब राम मंदिर से खुश है। बोले सुप्रीम कोर्ट हर बार हम लोग पूरे सड़कों पर उठाते हैं, और जो हो गया राम भरे, जैसे जावेद अख्तर एक प्रोग्राम में, जो राज ठाकरे जी के प्रोग्राम में बोला जय श्री राम, जय श्री राम करके जावेद अख्तर। तो चेंजिंग, जो आप बोल रहे हैं वो सही है। The changing mindset is evident, and that is because of strong leadership of Mr. Modi. जी हाँ, मोदी जी के काम से बहुत सभी प्रभावित है, पूरा देश प्रभावित है। देश के साथ दुनिया के कई लोग अचंभे में हैं कि ये प्रगति पिछले 8 साल 10 साल में किस प्रकार हुई। वे यहाँ पर आकर के रिसर्च करना चाहते हैं। मैंने तो कहीं पढ़ा कि रिसर्च करना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा देश और इतने बड़े देश में केवल 10 साल में इतना अच्छा काम कैसे कर रही है सरकार, लोग कैसे खुश है। ठीक है, थोड़ा बहुत विपक्ष एकदम वो है, अपना कंफ्यूज है, वो करना चाहते हैं, चाहे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जावे, कुछ भी करे, लेकिन वो सब फेल है। मैं चाहता हूं ये मोदी सरकार की ही एक बहुत बड़ी सफलता है। MSMEs, मोदी साहब कह रहे हैं कि he has strengthened the MSMEs। बोले हमने MSMEs को इतना मजबूत किया कि मैंने 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया पूरे देश में। मोदी साहब का कहना है MSMEs के माध्यम से 15 करोड़ में से 3.5 करोड़ वुमन एम्प्लॉयमेंट, दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंह। और जो बजाज साहब ने शुरुआत किया था, ऑल वर्ल्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.5 6.7 के आसपास मीडियम में रखा है। बट मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आलोचना, बोले तो लोग भाग क्यों रहे देश छोड़ के। 13.75 लाख सिटीजनशिप दे चुके और बाहर गए। बोले कि यहाँ के विनोद अडानी जी जो परम मित्र है बीजेपी का, उन्होंने भी गोल्डन पासपोर्ट ले लिया यूरोपियन यूनियन का। एंड दे आर सेइंग, करके साहब ने पहले से बोला कि MSME 20,000 बंद हो गए 3 साल में, 30 लाख जॉब। तो हाउ डू यू सी दिस आलोचना? यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि आई हैव स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का कहना है कि नथिंग इज राइट। गोस्वामी साहब, अब ऐसा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी तो खैर बोलती नहीं ज्यादा, राहुल गांधी के बयान आप देख लीजिए, चाहे उनके एक प्रवक्ता है रणदीप सिंह सुरजेवाला, क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, किधर से बोलते हैं, कोई कुछ उनको कोई सुनता नहीं, सीरियसली लेता नहीं है। ये इनकी काम है आलोचना करना, लेकिन देश एक बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। रही बात कुछ जो उद्योगपति जो जा रहे हैं, उनके अपने एक प्रॉब्लम रहते हैं, उनके एक अलग स्ट्रेटजी रहती है, उनके एक बड़े रहते हैं कि भाई कुछ बच्चे वहां पढ़ते हैं, कुछ उनका बैंकों का रहता है, वो अपने अपने अलग रीजन से जाते हैं। लेकिन आम आदमी, जो भारत का जो आम आदमी है, वो यहाँ हिंदुस्तान में रह करके अपने आप का भविष्य बहुत उज्जवल कर रहा है। गोस्वामी साहब, ये गरीब कल्याण स्कीम्स जो कांग्रेस के हैं, उसको आप कैसे मात दोगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जो गरीब कल्याण योजना है, गैस, उनका कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोले सबसे सस्ता गैस सिलेंडर अगर पूरे देश में मिलता हो तो राजस्थान में मिल रहा है। राजस्थान में 200 यूनिट फ्री, किसान कर्ज माफ, ओल्ड पेंशन स्कीम, वुमन को फ्री ट्रैवल, फार्मर्स को 2000, हर जिले में एक स्कीम है कि हर असेंबली में उनको इंटरनेशनल स्कूल बनाएंगे, इंग्लिश स्कूल बनाएंगे, स्टूडेंट्स को लैपटॉप। तो गोस्वामी साहब, बीजेपी के पास कोई मैचिंग स्कीम नहीं है, तो यहां पर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो गया कि हाउ बीजेपी विल फंक्शन। ओनली प्राइम मिनिस्टर मोदी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने और राज्य सरकार जहां भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने अनेक योजनाएं बनाई है और धरातल पे अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुंचाया है। हर कार्यकर्ता, आज कहीं इलेक्शन हो या नहीं हो, हम लोग घर घर जाकर के उन स्कीमों को बताते हैं और उनको फायदा देते हैं। करीब पिछले 5 साल पहले 17 करोड़ लोग लाभार्थी थे, इस समय करीब 45 से 50 करोड़ लोग लाभार्थी है। इसके अलावा अनेक योजनाएं भारत सरकार की सभी लोग ले रहे हैं। रही बात उनकी, जो किसानों को कर्ज माफी होगा, वैसी प्रकार की उनकी योजनाएं रहती है, उसका क्या हुआ, अंत क्या हुआ, लोगों ने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से उन्होंने किसानों के बारे में बोला कर्ज माफ करेंगे, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, उल्टा उनके ऊपर में केस हुए, उनके ऊपर में बैंकों ने अपना सख्ती दिखाई। तो ये जो स्कीमें रहती है कांग्रेस की, कोई सीरियसली लेते नहीं है, सिर्फ चुनावी एक खोखले वायदे तक रहती है।
रही बात फ्री की बात, तो फ्री की बात आप लोगों ने दिल्ली में देखी है, क्या हालत होती है वहां की जनता की, और किस प्रकार में बाद में केजरीवाल जी आती है, प्रधानमंत्री को कहते हैं कि हमें पैसे दीजिए, हमारी तिजोरी खाली है। तो ये तिजोरी खाली नहीं करना, लोगों तक उसकी योजनाओं का सही फायदा मिले, लोग उसको अपना यूटिलाइज करें, और राज्य की और देश की तरक्की भी हो, ये भी हमें देखना है। लेकिन चंदन गोस्वामी साहब, आपने दिल्ली की बात करी, अरविंद केजरीवाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, तीसरी बार। तो भले ही आप कह रहे हो कि दिल्ली के लोगों की हालत क्या है, दिल्ली के लोग तो बड़े खुश नजर आते हैं केजरीवाल से, और वही पंजाब की हालत है। अगर दिल्ली के लोगों की हालत जो है वो खराब होती तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को कोई वोट क्यों देता? आज की तारीख में भगवंत मान साहब की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। चंदन गोस्वामी, मैं तो भगवंत मान साहब की सरकार क्या, राज्यपाल से किस प्रकार से उन्होंने वो किया है, राज्यपाल एक हिसाब ले रहे हैं तो दे नहीं पा रहे हैं, ये तो वहां की हालत है। दिल्ली की सरकार 650 मोहल्ला क्लिनिक अभी अभी उन्होंने उद्घाटन किया है, 650 मोहल्ला क्लिनिक्स का पंजाब में। पहली बार ऐसा हुआ है पंजाब में, आज तक कभी नहीं। मैं तो पंजाब से हूँ, मुझे मालूम है सर। आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में आप खुद ही रहते हैं, दिल्ली में आप देख लीजिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्या है। अभी मैं खुद देख करके आया वहां के मोहल्ला क्लिनिक। सर अभी ठीक हो गई है, बंद खराब थी। हाँ, बीच में खराब थी, कोविड के टाइम पे जरा बंद कर दिए गए थे, लेकिन अभी ठीक हो गई है काफी। अरे साहब, अभी मैं एक महीना पहले पहाड़गंज में गया था, वहां देखा मैंने मोहल्ला क्लिनिक, वहां लोगों ने अपना माल रखे हुए हैं, गोदाम बना के रखे हुए वहां पर में। हो सकता है सर, अब ये तो हालत है वहां। हाँ सर, हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक के कांग्रेस के वादों का प्रश्न है, कांग्रेस ने जो भी गारंटीज दी हैं उनका इफेक्ट तो पड़ा है सर, प्रभाव तो पड़ा है। और दूसरी चीज क्या है, जैसे राजस्थान हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, हर कोई वहां पूछ रहा है कि मोदी जी आकर के यहाँ मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे ना। लोकसभा में हम लोग मोदी जी को बिल्कुल मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी के सामने कौन है? बताएं सर। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी हमने योगी जी को पहले नहीं बनाया सर, उस वक्त देर थी होने के बाद। सर उस वक्त तो क्या लहर थी उधर, 2014 की तो बात ही छोड़ो सर, वो तो मतलब बात ही अलग थी, वो तो बात ही अलग थी सर। लेकिन अभी की बात करो ना, हर एक को ये बोल रहा है कि मैं मोदी जी आकर के मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। खुद सोच के बताइए। ठीक है, लोगों के अपने अपने व्यू होते हैं, लेकिन आखिर तो केंद्र सरकार के साथ में ही अपना साथ में रहना है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, वो संगठन ही तय करता है किसे मुख्यमंत्री बनाना है। सर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, बहुत अच्छे तरीके से आएगी, पिछली बार से ज्यादा अच्छी आएगी। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, पिछली बार आपके 303 आए थे, इस बार आपके 315, 320, 350 भी आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए हैरानगी की बात नहीं होगी। लेकिन जहां तक स्टेट्स का सवाल है, आपने कहीं ऐसा लगता तो नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके देखिए साहब, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जबरदस्त काम कर रहे हैं, और असम में हेमंत बिस्वा शर्मा क्या काम कर रहे हैं साहब, मजा आ गया। लेकिन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो आपके लोकल यूनिट है, और महाराष्ट्र में आपके जो लोकल यूनिट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जरा कमजोर किया जा रहा है गोस्वामी साहब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजस्थान में आज ही आपने देखा कितना वोट परसेंटेज बढ़ा है जी, कितना वोट परसेंटेज बढ़ा है उस पर, और लोग निकल रहे हैं किसको वोट देंगे। एक आम लोग पूछे तो मोदी, ठीक है, 10 में से एक बोल देता है अशोक गहलोत करके, ऐसा नहीं कि मैं उसको नकारता हूं करके, लेकिन मोदी जी के एक ही नाम बोलते हैं, नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं हम। मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं, वो संगठन तय करेंगे, मैंने पहले बता दिया। रही बात कांग्रेस, ये अपना छत्तीसगढ़ में, तो वहां पर में कांटे की टक्कर जरूर है, वहां पर में कुछ है। मध्य प्रदेश में सरकार आ रही है, और रही बात यहाँ की महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ हम लोग सभी को लेके चल रहे हैं। जो पार्टी मोदी जी के साथ आना चाहती है, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ आनी चाहती है, हम उनका साथ ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर महाराष्ट्र की बात करें गोस्वामी साहब, महाराष्ट्र की अगर बात करें, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं सीधा सवाल बोल रहा हूँ आपको ये, और अंदर का सवाल है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आसपास के जो लोग हैं वो जान करके आदरणीय सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही के खुद के जो एलाई हैं, वेरी फ्रेंकली।
अब ये देखिए वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनके पास में क्या अंदरूनी बात है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग संगठन के चलते हम जनता का काम करते हैं, 24 घंटे हम जनता के साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहता है। अब वो उनका आपस में क्या है क्या नहीं वो उनके घरेलू बातें हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब सरकार चलती है तो तीनों का समन्वय होने के बाद ही निर्णय लिए जाते हैं, वो निर्णय नीचे तक जाते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जिसमें आप भी शामिल हैं, आप इस बात को आधिकारिक तौर पर नहीं बोल सकते। हर कोई ये चाहता है कि आदरणीय सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस जी को फौरन मुख्यमंत्री बनाया जाए, तभी जाकर के महाराष्ट्र ठीक तरीके से चलेगा। ये कब होने वाला है सर, ये तो बता दो गोस्वामी साहब। ये भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। देवेंद्र फडणवीस एक हमारा सम्मानीय नेता है, वैसे अनेक कार्यकर्ता जो अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी को भी एक संगठन ने ही जवाबदारी दी थी, वैसे अनेक कार्यकर्ता हैं। अब वो सब बनेगा, हम भी चाहते हैं कि कार्यकर्ता चाहता है कि मेरा नेता अगर मुख्यमंत्री बने तो उसे खुशी होती है। ये तो हर व्यक्ति चाहता है, हर संगठन चाहता है, चाहे राष्ट्रवादी अजित पवार का होवे वो भी बोलते हैं कि हमारा अजित पवार बने, चाहे एकनाथ शिंदे जी का होवे, वो सभी चाहते हैं। लेकिन आखिर में जनता की निर्णय हमको मानना पड़ता है और सब परिस्थितियों को हमें आकलन करके उसी को जवाबदारी दी जाती है। सुप्रिया सुले भी अभी हाल ही में आज आरोप लगा दिया। सुप्रिया सुले ने कहा कि जब जो जरांगे पाटिल जलना वाले इंसिडेंट में जो पुलिस पर पथराव हो गए, वहां पर बहुत सारे लोग अरेस्ट हो गए और उनके पोजीशन में पिस्टल मिले, गोलियां मिला। तो सुप्रिया सुले का कहना फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, द होम मिनिस्ट्री हैज फेल्ड, दैट इज व्हाट सुप्रिया सुले सेज। बोले देवेंद्र फडणवीस जी पहले अच्छा काम करते था, अभी ट्रिपल इंजन सरकार में देवेंद्र फडणवीस जी का परफॉर्मेंस बिलो परफॉर्मेंस हो गया है और 200 भले एमएलए है मगर सरकार स्थिर नहीं है। गोस्वामी साहब, सुप्रिया सुले अब ये तो डे वन से बोल रही है, ये डे वन से बोल रही है। पहले कभी केंद्र सरकार के बारे में बोलते थे, अभी देवेंद्र जी के बारे में बोल रहे हैं। कभी बोलते थे 6 महीने और 1 महीने में सरकार हट जाएगी, वो संजय राउत बोलते हैं 15 दिन में हट जाएगी, हम आ जाएंगे। ये अपना इनका काम है आलोचना करना, लेकिन लोगों को, यहाँ की जनता को, यहाँ की 11 करोड़ जनता को सब पता है कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना विकास कर रहा है, कौन संगठन हमारा ख्याल रख रहा है, पब्लिक को पता है। और ये हमारे दर्शकों के लिए अभी अभी जो आपने सुना, हम लोगों ने चंदन गोस्वामी साहब से जो हमारी बातचीत चल रही है, नंबर 1 ये सवाल आप लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, रामलला के आने के ऊपर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया जरूर भेजें। आई वुड लव टू रीड इट आउट। हम लोग तो बड़े खुश हैं साहब, हम तो खुद अयोध्या में होंगे उस दिन और लोगों के साथ होंगे। वीवीआईपी पास नहीं चाहिए हमको, हमारे रिपोर्टर्स के पास वीवीआईपी पास होगा, हम लोगों के साथ होंगे। नंबर 1। नंबर 2, क्या देवेंद्र फडणवीस जी को फौरन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? प्लीज रिप्लाई yes or no and I'll read out whatever you have sent tomorrow. Once again, should Mr. Devendra Fadnavis be made the Chief Minister of Maharashtra without further delay? I think he should. That's my opinion. Please do send in your replies as soon as possible. And Chandan Goswami sir, I promise you, we will send you the result of the survey as soon as we get it. Just one more question, sir. Yes, Sharad Pawar ji has been critical of Prime Minister Modi. Yes. बोले मोदी साहब जहां भी जाते हैं जिस स्टेट में उस सीएम के आलोचना करना शुरू कर देते हैं। शरद पवार जी बोले कि whichever state he goes, he discredits the chief minister of the state and that is not good for democracy. और जिस प्रकार से शरद पवार साहब हर जिले में जा रहे हैं, बोले जिस जिले में मैं जाऊंगा जितने भी गद्दार हैं वो सब हार जाएंगे। How do you see this kind of a statement coming from शरद पवार साहब? गोस्वामी साहब। अब ऐसा, शरद पवार जी एक बहुत बड़े कद के नेता है हमारे महाराष्ट्र के। अब मैं उनके ऊपर में तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन जनता बताती है, मैंने पहले बताया ना, यहाँ की महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता देख रही है, देश के 140 करोड़ लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का काम क्या है और यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है। और उसके अलावा मैं आदरणीय शरद पवार जी के बारे में क्या बोल सकता हूँ। तो ये जो कास्ट वॉर चल रहा है ना, जिस प्रकार से 2 दिन पहले 29 लाख कुणबी सर्टिफिकेट्स, मराठा सर्टिफिकेट्स नोंदणीकरण हो गया था, आज 32 लाख के आसपास है। नाउ दिस भुजबल साहब ने वापस एक रैली बुलाया है। भुजबल साहब ने
हिंगोली में एक रैली बुलाया है, वापस सब ओबीसी रैली सब एकत्रित होकर ओबीसी शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा और बार बार सरकार को संकेत होगा कि ये जो बढ़ते जा रहे हैं रोज पे रोज लाखों में जो सर्टिफिकेट जा रहा है आगे जाकर करोड़ों में होगा, इस पर किस प्रकार से आप सॉल्यूशन निकालेंगे, सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन? गोस्वामी साहब, व्हाट इज गोइंग टू बी द सेटिस्फैक्टरी? बोलिए। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने आज भी कहा है और उनके मंत्री संजय सिरसाट ने आज भी कहा है कि ओबीसी को किसी भी प्रकार से धक्का न लगते हुए हम मराठाओं को आरक्षण देने का जो हमने वचन दिया है वो हम पूरा करेंगे। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि उस आरक्षण को एक कानूनी वैधता मिले, कानून के अंतर्गत काम होने। और रही बात छगन भुजबल जी की, वो अपनी एक ओबीसी नेता है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उसका जो सवाल जवाब है तो वो आदरणीय एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री को देंगे जी। राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट as far as this part of the show is concerned. Mr. Chandan Goswami, great pleasure sir talking to you, really and truly wonderful having you और सर आपके लुक आज आपका लुक देख करके मुझे कुछ पुरानी यादें आ गई सर। वो दाढ़ी संभालनी बड़ी मुश्किल हो गई थी। वो क्या है कि बहुत मुश्किल हो गया था उसको संभालना। मतलब मैं कहा यार, और फिर बाकी सब लोग इकट्ठे आ गए, उनका भैया इसको हटाइए, अब चलिए वापस बनिए। तो और गोस्वामी साहब आपका भी लुक कुछ नया है, आपका बाल और हेयर स्टाइल वगैरह। दिवाली थी। ओके दिवाली थी तो दोनों आजकल संत लोग भी, कई लोग दाढ़ी निकाल रहे हैं, हमने देखा है। हमारे प्रज्ञानंद सरस्वती जी भी एकदम यंग लगते हैं, हमारे गुरु जी भी। जी बिल्कुल। क्या है कि वो असल में क्या है कि वो एस्ट्रोलॉजिकली भी क्या है कि वो जो राहु जो है अब मेष से निकल करके मीन में आ गया है, तो इसलिए हर एक ने दाढ़ी निकाल दी है। चलिए, मेरा भी वही है, मेष से निकल के मिलेगा जी। चलो, जय श्री राम। मतलब गुरु चांडाल जो खत्म हो गया है इसकी वजह से। चलिए सर, अब 22 तारीख को अयोध्या में मिलेंगे। बिल्कुल वही प्राण प्रतिष्ठा वही मिलेंगे। जय श्री राम सर, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। Yes. Very wonderful talking to Mr. Chandan Goswami. Yes. And you know, as far as Ayodhya is concerned, I'm really and truly excited about it. I think it's really nice talking to him because this is wonderful. He's full of fire when you talk about Ayodhya and Krishna Janmabhoomi. आप देखो, गए बार भी आपने इशू उठाया तो you know a special energy came out of him and नहीं प्रदीप जी, ये दिस इज लॉन्ग ओवरड्यू। देखिए साहब, ऐसा है कि 1535 अराउंड 1535 और सो आपने जाकर के एक हिंदुओं की मतलब एक प्रतिष्ठा वाली जगह को आपने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया आपने। मतलब उसके बाद दायित्व बनता है सब लोगों का मिल करके उसको। Was it 1435? Was it 1535? I'm not sure. 1535. 1535, yeah. So मतलब this is not done. I mean, as far as this thing is concerned, और आपको याद होगा कि भाई पहले विश्व हिंदू परिषद ने सिर्फ यही बोला था कि भाई हमें ये 3 जगह दे दीजिए। एग्जैक्टली व्हाट द पांडवास सेड टू द कौरवास कि यार हमें सिर्फ 5 गांव की जगह दे दीजिए। उसने कहा मैं मतलब नहीं देंगे, सुई के नोक की बराबर नहीं दूंगा। अब सामने वाले मतलब मुसलमानों ने कहा कि हम लोग नहीं देंगे। जब ठीक है मत दीजिए। तो अब जो 3 लाख हमारे जो मंदिर हैं जो आपने तोड़े हैं, वहाँ पे मस्जिद बनाई है आपने, तो वो फिर हम लेके रहेंगे। They had an opportunity. As you said yourself yesterday, it was a great opportunity for all the Muslims to come together and join hands with the Hindus, and for the Hindus to join hands with the Muslims, and all of us could have built the Ram Mandir together. सीधी बात है, मतलब बना सकते थे, लेकिन क्या करेंगे अभी? आपने तय कर लिया कि हम नहीं बनाएंगे। और तो और छोड़िए, मुझे तो अभी तक ताज्जुब हो रहा है कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है बनारस में, काशी में, सबको मालूम है कि सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग वहाँ था। उस मंदिर को तोड़ करके औरंगजेब ने तोड़ करके वहाँ पर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई। और उसके पहले बड़ी मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात है, मैं कई बार यहाँ पे बोल चुका हूँ, उसके पहले औरंगजेब के ही पुरखे यानी बादशाह अकबर ने मुगलिया खजाने से पैसे दिए थे काशी विश्वनाथ मंदिर को और भी ज़्यादा भव्य बनाने के लिए। उसको औरंगजेब ने तोड़वाया, याद रख लीजिए। मतलब इससे बड़ी वाहियात बात क्या हो सकती है? और वहाँ पर आप मस्जिद बना रहे हैं, वो वैसे ही नापाक ज़मीन है आपके लिए। भाई कुरान शरीफ में भी लिखा है
कि आप किसी भी और मज़हब की कोई भी इमारत हो जहाँ पर उनका इबादत गाह है या जिसको हम लोग मंदिर कहते हैं, उसको तोड़ करके आप वहाँ पे मस्जिद नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी आप लोग लड़ रहे हैं. मतलब आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज. आई फाइंड दिस रियली एंड ट्रूली स्ट्रेंज. एंड ऑन व्हाट बेसिस कैन दे इवन कॉल देमसेल्व्स Muslims? I mean, this is terrible. But everything is positive and rosy where Krishna Janmabhoomi is concerned. The Prime Minister's vision, the Prime Minister going there and announcing that बहुत ही जितना भव्य वो बना था ये भी उतना ही भव्य बनेगा. जी. So it's अरे clear. सर उसके ऊपर ईदगाह बना दिया है. अग्रसेन का जो जिसको हम अग्रसेन का महल कहते थे, और नीचे जा करके आप सीढ़ियों से अगर आप नीचे जाएं तो वो काल कोठरी भी है जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ. मतलब जहाँ पे देवकी और नंद को रखा था नीचे, मतलब देवकी और that वासुदेव place को has रखा. an history, an ancient history, and you can't. revered by the Hindus. You can't. And Krishna has a huge following across the world. Across the globe. Yes. Across the globe. And in fact even more than Sri Ram, come to think of it. Bilkul. Because of the efforts Movement. of ISKCON and ISKCON movement. Yes. And everybody else. So everybody loves Lord Krishna. And the way in which all these chaps from all over the world, right from Latin America to North America to Europe to Eastern Europe, even in China, and even for that matter in Japan, the manner in which they sing Krishna bhajans, it has to be heard and seen to be believed. It's really and truly wonderful. I absolutely love it. And I think India is finding its soul, finally. Correct. And it's finding its soul altogether. Yes. Where nobody is ashamed of what they are. Let's be very clear. I mean, if you're Hindu, you're Hindu. You're a Muslim, you're a Muslim. You're a Christian, you're a Christian. You're a Sikh, you're a Sikh. You're a Buddhist, you're a Jain, whatever. So you don't need to be ashamed of what you are. That's it. Earlier, if you remember, as Hindus, most people were embarrassed about talking about their religion. No, they were afraid to talk. And you know the point, the secularism that was defined by the system then and whenever, that हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे, that is not secularism. That is communalism. Yes. आप राम मंदिर के बारे में, you're communal. You're not secular. If you're talking about all these ancient sites, you are not. Secularism was defined. You're communal. You're a fundamentalist. Yes. You are an RSS ka gunda. बिल्कुल. Stuff like that. So I think the most vocal was Ram Jethmalani, the late. He's not there anymore. वो हर प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं यहाँ पर हिंदुओं के बात करना, यानी आप फंडामेंटलिस्ट हो गए, आप कम्युनलिस्ट हो गए. And this is what is secularism. क्या है? Define secularism was something else. And today, I mean, today is different. I mean, everybody accepts this as self-evident that अगर राम का जन्मभूमि है तो राम का मंदिर ही बनना चाहिए. That's it. And tomorrow look at again it. it's going to be self-evident that अगर कृष्ण का जन्मभूमि है तो कृष्ण मंदिर. अरे आप देखिए ना, AIMIM क्या है? All India क्या है वो? इत्तेहाद Muslimin or something like that. That's what it is called. And that's supposed to be a secular party. The All India Muslim League is supposed to be a secular party. The Akali Dal, Shiromani Akali Dal, is supposed to be a secular party. You got to be kidding me, man. And the BJP is supposed to be a fundamentalist party. अब क्या मतलब ये क्या मतलब हुआ? ये कोई मतलब नहीं हुआ. मतलब आप खुद सोच के बताइए. AIMIM कब से सेकुलर हो गए भाई? आपके नाम में ही है that you are only going to be looking after the interests of Muslims. It says so in the name of your party, and you say that you are a secular party. Exactly. मतलब if you are looking after the interests of Muslims, you are secular. If you are talking about Hinduism, if you are talking about the religion of the majority of India, you become fundamentalist, fascist, inspired by Hitler. You are a Nazi party. You got to be kidding me, man. And now it's different. The age is different where people believe that it's self-evident. Yes. It is. If it is a birthplace, it has to be a temple there. I mean, the President of the United States of America swears on the Constitution of the United States on the one hand and the Holy Bible on the other. And he's secular. I mean... And then they also preach to the whole world what is secularism. That's right. I mean, you can have respect for all religions. But you have to follow your own religion, which is why it is so wonderful to see Rishi Sunak and his wife, wear their Hinduism on their sleeve. He says, I'm a Hindu and I'm very, very proud of it. Wonderful, absolutely wonderful.
I mean, look at the way he celebrates Diwali, look at the way he celebrates all festivals, look at the way he celebrates, Krishna Janmashtami and everything else. He said, why should I hide the fact that I'm a Hindu? I'm a Hindu, that's it. End of story. I mean, come on. You have to be able to live with yourself, most importantly. Up till now what was happening was, because of the particular brand of Nehruvian politics, Hindus were asked to suppress their own religious feelings. And that, I think, is unacceptable. You can't do that. Now thing has changed. I mean, now thing has changed. The credit has to go to Lal Krishna Advani ji. He is, with his yatras, with his Rath Yatras, with his vision of the construction of the Ram temple and the whole country rallying around with him. His yatras were super, and unfortunately all except Mr. Prime Minister Modi, nobody else is a part of the current government, where Lal Krishna Advani, Pramod Mahajan, Murli Manohar Joshi, they all had this entire dream. The rallies started, the plannings, the polarization of votes, polarization of Hindus. right, and we